Om Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Mavit Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Together we'll chant from verse number 16 to 25, chapter number 1, verse number 16 to 25 tak. We'll chant together. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakula Sahadevascha Sughosho Manipushpakau Kashyascha Parameshwasaha Shikhandi cha Maharathaha Drishtadhumno Viratascha Satyakischa Parachitaha Draupado Draupadeyascha Sarvasha Prithvipate Saubhadrascha Mahabahu Shankhan Dagmau Prathak Prathak Saghosho Dharta Rashtranam Hridayani Vyadaraya Nabhascha Prithvim Chaiva Tumalo Vyanudanayan Atha Vyavasthitan Drishtva Dharta Rashtran Kapidhvaja Pravarte Shastra Sampate Dhanurudyamya Pandava Rishikesham Tada Vakyam Idamaha Mahipate. Today we'll start from the verse number 16 of chapter number 1. The name of the chapter is Arjun Vishad Yog, the despondency of Arjuna. Arjuna is in the state of depression, state of agitation. दुखी है, परेशान है. तो गीता की शुरुआत होती है विषाद से. विषाद मीन डिस्पोंडेंसी से, दुखी है. और जर्नी है फ्रॉम एजिटेशन टू सेल्वेशन. फर्स्ट चैप्टर गीता जी का एजिटेशन है और लास्ट चैप्टर है सेल्वेशन, मोक्ष. So the whole journey is from agitation to salvation via meditation. The chapter 6 is meditation. So the meditation is the process through which you lead yourself to the finale, which is the highest happiness. So the highest happiness is your birthright. We are born in this world only to achieve that absolute, immaculate, pure, unperturbed, changeless happiness, if you can use that name. So happiness, what is happiness? तीन चीजें आती हैं यहाँ पे. Actual, the word that Sanskrit uses is a bliss. When you fulfill your desire, you feel happy. When you're not able to fulfill your desire, you're unhappy. And when you eliminate your desire, you are in bliss. I repeat, when you fulfill your desire, you're happy. When you're not able to fulfill your desire, you are unhappy. When you eliminate your desire, you are in a state of bliss. So Arjun की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी तो उसे दुख हो गया. इच्छा जो भी हो, when you are not able to fulfill your desire, you get agitation. There are two types of tragedies man has to face. George Bernard Shaw said there are two types of tragedies man has to face. The first tragedy is when you do not get desire of your heart. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा दो कारणों से आदमी दुखी होता है. पहला, जब दिल की तमन्नाएं पूरी ना हो. द फर्स्ट ट्रेजेडी इज व्हेन यू डू नॉट गेट द डिजायर ऑफ योर हार्ट, एंड सेकंड ट्रेजेडी इज व्हेन यू गेट इट. इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा हो जाता है, और इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा हो जाता है. इच्छा पूरी हो जाए तो भय हो जाता है. आपको अपने एरोप्लेन खोने का भय है? आपको अपने एरोप्लेन खोने का भय है? नहीं है भय. क्यों नहीं है भय? क्योंकि है नहीं. भय कब होगा?
भय कब आएगा? When you fulfill your desire. So desire is the cause of all our sorrows. Desire is the cause of all our sorrows. When you fulfill your desire, you get arrogance, you get fear, you get greed, you get jealousy. Nothing wrong in desire. I'm repeating monotonously. Nothing wrong in desire as long as you have a control over your desire. It's like electricity. Electricity is a blessing if I know how to handle electricity. But if I don't know how to handle electricity, electricity can electrocute me. So the whole philosophy of Vedanta is channelizing your thoughts toward a higher direction, channelizing your emotions toward a higher direction. So when you take care of your kids, you do it for a higher cause. When you take care of your kids, you should have this attitude, I am the nimitta matram. मैं instrument हूं, मैं निमित्त हूं, I am just a trustee of this child. नेचर ने मुझे दिया, I should take care of it, but I am not the owner. क्योंकि वो बुलिया तुकी कितनी कमाई, मुंडिया नु लेगी नुआ ते तिया नु लेगे जवाई. लड़कों को कौन ले जाती है? मुंडिया नु लेगी नुआ, तो तिया नु लेगे जवाई. लड़कियों को दामाद ले जाते हैं, लड़कों को बहुएं ले जाते हैं. So you are a trustee and you also did the same thing. Please don't shy away to anybody else. So karma function. So हम सबकी लाइफ में पर्पस क्या है? हैप्पीनेस. और वो हैप्पीनेस कब मिलती है? when you join yourself to the higher entity. अब पूरा यूरोप घूम के आए हो 7 दिन. You travel all over the Europe. Suppose you've been to Zurich, to Paris, to Geneva, to Luxembourg, to Rome, to London. सारा 7 दिन घूम के आए. You went to the best of the best hotel, best of the best restaurant, best of the best scenery you saw. लेकिन आराम कहाँ मिलेगा? चल खुसरो घर आपने, रैन बही परदेस. शांति कहाँ मिलेगी? When you reach your home, the real shanti कब मिलेगी? When we reach our original abode. यहां तो हम टूर करने आए हैं इस पृथ्वी पे. इस पृथ्वी पे तो हम टूर करने आए हैं, ट्रैवल एजेंट है, टूर करने आए हैं. कभी ये घर बदलते हैं, कभी ये घर बदलते हैं. ओरिजिनल चल खुसरो घर आपने, रैन भई परदेस. अब ये परदेस हो गए, क्योंकि रियल आनंद क्या है? वो है when you meet your original nature, when you merge yourself to the pure consciousness. जब प्रभु से जुड़ जाओ. नदी कब शांत होती है? नदी ऊपर धूप धाड़ धाड़ शोर शराबा रोड मस्ती है. बड़ा पहाड़ आए तो साइड ट्रैक हो जाती है, छोटी पहाड़ी है तो ऊपर हो जाती है. लेकिन शांत कब होती है? जब अपने ओरिजिनलिटी पे पहुंचती है, जहां से शुरू हुई थी. कहां से शुरू हुई थी नदी? समुद्र से. समुद्र की भाप बनी, और वो भाप क्लाउड्स बने, वो आइस बनी, और वो आइस रेन बनी, रेन पानी, रेन नदी बनी. और वो तो शांत कब होती है? जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचती है. हम कब शांत होंगे? when we reach our original nature. and उसको बाधा कौन डाल रहा है? desires and desire. In Hinduism we call it desire as asuras. इन मुसलमानों में डिजायर को शैतान कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में सैटन कहते हैं, और बुद्धिज्म में मारा कहते हैं. In Buddhism they call it Mara. In Hinduism they call it Asuras. In Christianity we call it Saturn. In Musliman they call it Shaitan. That's all. Asur, Shaitan, Saturn or Mara, ये desires. And these desires need to be controlled. Now this is the fight. एक बाहरी हो रही है, अर्जुन की युद्ध में हो रही है, महाभारत में हो रही है. एक लड़ाई रोज हो रही है. ये एक लड़ाई है पांडवों की, कौरवों की, रोज हो रही है. ये लड़ाई है मन और बुद्धि की, माइंड और इंटेलेक्ट की. माइंड वांट टू स्लीप, इंटेलेक्ट से गेट अप. माइंड वांट टू say some nasty things to somebody, but intellect says keep quiet. So this is the fight between the mind and intellect. महाभारत बाहर हुआ होगा, I don't know. हुआ है, of course हुआ है, लेकिन रोज हो रहा है आपके अंदर महाभारत, और ये विषाद लाता है. So with this idea,
शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, लड़ाई की शुरुआत हुई है। अभी भगवान जी ने अपनी वाणी को शुरुआत नहीं करी। ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग, ही इज जस्ट लिसनिंग। Krishna is just listening. He is going to talk from the verse number 2 of chapter number 2. So up to that time you have to wait. But here he starts. So अभी संजय बोल रहा है। संजय क्या बोल रहा है? Verse number 16 will chant together. हमने लास्ट किया था, लेकिन I repeat here. Verse number 16 को we will start and then we'll go to the next verses. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुघोषौ मणिपुष्पकौ। संजय कहता है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती ब्लू अनंत विजय। मैंने जैसे कल बताया था आपको, इस अध्याय में नाम बहुत है, इस अध्याय में नाम बहुत है। अनंत विजयम, नकुल ने, सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक बनाए। लेकिन यहां कोशिश कर रहा है एक आदमी कि शायद अभी लड़ाई बंद हो जाए। Even one person is still trying that they should not be war, because war is not a good option. War is not a good option. And Sanjay is still trying that this war should stop, क्योंकि संजय को consequences पता है war के। इसलिए एक आदमी अभी भी एक आदमी युद्ध रोक सकता है, and that is धृतराष्ट्र, the kingdom, the king of the Kuru kingdom. पूरी कुरु किंगडम का जो किंग था वो अभी भी धृतराष्ट्र है। लेकिन संजय ने बोला राजा युधिष्ठिर, he is not a king, Yudhishthir is not a king, but he is trying to say he actual real king कौन है, उसका अधिकारी कौन है, वो युधिष्ठिर। और उसके शंख का नाम क्या है? अनंत विजयम। अनंत विजयम मीन्स जिसकी हमेशा विक्ट्री होती है। सो संजय स्टिल ट्राइंग कि you are fighting with Yudhishthira who's really राजा, and his शंख का नेम है अनंत विजय, मीन्स उसको कोई हरा नहीं सकता। और खासकर कृष्ण जिसके साथ हो उसको कैसे कोई हरा सकता है। लेकिन ये मन है, मोह में मानता नहीं। मैंने आपको बताया हिंदी फिल्मों में कितने गाने हैं मन में, दिल पे। दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, दिल दीवाना है, दिल ने याद किया, दिल तो फिर दिल दीवाने दुनिया ले जाएंगे, दिल पता नहीं दिल पे कितने गाने हैं। एक गाना भी मुझे ऐसा बता दीजिए हिंदी मूवी में जो बुद्धि पे हो। कितने गाने हिंदी मूवी में चांद में, चांदनी की रात 14वीं का चांद, चांद तुम आ जाना, पता नहीं कितने। if I start I will need a whole 45 minutes only to sing the song on the चांद। एक गाना भी सूरज में बता दीजिए। आप कहोगे सूरज हुआ मध्यम, लेकिन वहां पे भी सूरज मध्यम हो रहा है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, वहां पे भी चांद आ गया साथ में। That is not only one song है हिंदी मूवी में जो सूरज पे है, only one song, जगत भर की रोशनी के लिए सूरज रे चलते रहना। सारी इमोशन को हैंडल कर रहे हैं, सारी फिल्म इंडस्ट्री आपके इमोशंस को हिलाने की कोशिश कर रही है, सारी मीडिया आपके इमोशंस को हैंडल करने करते हैं। और जब इमोशन सिंबलाइज करते हैं चांद से, चांद इज अ सिंबल ऑफ इमोशन and the sun is a symbol of intellect। और जब जिसका बहुत इमोशन स्ट्रांग हो जाए उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे अंग्रेजी में कहते हैं लूनेटिक। लूनार से आया शब्द ये, लूनार से, लूनेटिक
जब फुल मून होता है ना मेंटल असाइलम में, एक्स्ट्रा फोर्स रखनी पड़ती है। फुल मून नाइट में एक्स्ट्रा फोर्स रखनी पड़ती है मेंटल असाइलम्स में। व्हाई? बिकॉज दिमाग क्रेजी हो जाता है, इमोशंस कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए पूर्णमासी में व्रत रखा जाता है हमारे यहाँ। हाई टाइड होती है, जब हाई टाइड होती है तो ओशन का पानी ऊपर उठता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में 80% पानी है, सो 80% पानी है। जब हाई टाइड होती है तो बॉडी का वाटर कंटेंट ऊपर होता है, एंड यू आर सपोज टू टेक ए फास्ट दैट डे। व्हाई? बिकॉज वो वाटर लेवल सेम रहे। इफ वाटर ऑलरेडी फुल है, सपोज ये वाटर ऑलरेडी यहाँ तो फुल है, मैं थोड़े से और सब्जी डालूंगा तो पानी क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। दैट्स व्हाई फुल मून में, पूर्णमासी में उपवास करने को बोलता है। हाई टाइड से रिलेशनशिप है, माइंड से रिलेशनशिप है, और माइंड इमोशंस लूनार से। सो माइंड, सॉरी, मून सिंबलाइज इमोशंस एंड सूरज सिंबलाइज इंटेलेक्ट। लेकिन मैंने पहले लेक्चर में जरूर याद बोला होगा, आपको याद होना चाहिए, घर में अगर एक आदमी इमोशनल हो जाए, पति इमोशनल हो जाए या पत्नी इमोशनल हो जाए, और पति या पत्नी दूसरा व्यक्ति आंख में पट्टी बांध ले, तो धृतराष्ट्र मोह में अंधा हो गया और गांधारी ने भी आंख में पट्टी बांध ली। जिस घर में एक आदमी या पति या पत्नी मोह में अंधा हो जाए और उसकी पार्टनर भी आंख में पट्टी बांध ले, तो ऐसे घर में 100 औलादे भी आ जाएं, सुख नहीं आता। 100 औलादे भी हो जाएं तो सुख नहीं आता। तब अनंत विजयम राजा युधिष्ठिर ने शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाया। ये नाम हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि अभी वो भी इस सारी घटना को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। उसके आगे क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 17 और 18 इकट्ठे हैं। We have verse number 17 or 18 together. We'll chant the verse 17, 18 together. Only once we will chant. काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथा दृष्टधम्नौ विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः मृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखां दग्मौ पृथक पृथक। और श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज महारथी ने, शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, विराट ने, अपराजित सात्यकी ने, द लॉर्ड ऑफ अर्थ द्रुपद ने, सब ने अलग अलग, अभिमन्यु ने, महाबाहु अभिमन्यु ने, सब ने अलग अलग शंख बजाए। जब आप मूवी देखते हो तो शुरू में टाइटल्स आते हैं। जब आप कोई मूवी देखते हो तो शुरू में टाइटल्स होते हैं और बाद में मूवी शुरू होती है। तो ये गीता जी के पहले अध्याय में टाइटल्स हैं कि ये लोग आए हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस टाइटल्स बिकॉज इट शोज कौन इस लड़ाई में लड़ने जा रहा है। नाउ दीज नेम्स में बी फॉरेन टू अस, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 2-3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी पते मीन्स द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, श्रेष्ठ धनुधारी काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के भाइयों ने, पृथ्वीपति महाबाहु ने शंख बजाए। एक नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने पूरी महाभारत को बदल दिया, और वो है अभिमन्यु। एक नाम आता है इसमें, अभिमन्यु। हम सब अभिमन्यु की तरह समस्या के अंदर आना तो आता है, चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, लेकिन निकलना नहीं आता। हम सब संसार में टपकना तो आता है, पंगे में पड़ना तो आता है, लेकिन पंगे से निकलना नहीं आता। Now this is not just a mythological story, it drives home the point. अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन की संतान थी। उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह का तोड़ना सीख लिया था, लेकिन निकलना नहीं सीख पाया। तब तक सुभद्रा सो गई थी।
आई एम नॉट गोइंग गिविंग यू द स्टोरी, बट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमारी लाइफ में महाभारत हो रहा था। जब महाभारत की लड़ाई हुई, कृष्ण और अर्जुन को जय धोखे से आगे ले गया शिशुपाल। शिशुपाल कृष्ण और अर्जुन को धोखे से आगे ले गया और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी और उस चक्रव्यूह को तोड़ना किसी को नहीं आता था, सबके सब दुखी थे। ऐसे में अभिमन्यु ने बोला मुझे आता है चक्रव्यूह तोड़ना। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में गया और फंस गया। उसके बाद पूरी युद्ध की परिभाषा बदल गई। अप टू दैट टाइम, अभिमन्यु की मृत्यु से पहले दे वर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट आफ्टर दैट भगवान हैज चेंज्ड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। मैंने आपको कई बार बताया ये एग्जाम्पल, लेकिन ये समझ लीजिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पैसिव, एक होते हैं एग्रेसिव। पैसिव भी दो तरह के होते हैं, पैसिव गुड एंड पैसिव बैड। एंड एग्रेसिव दो तरह के होते हैं, एग्रेसिव बैड एंड एग्रेसिव गुड। तो इस संसार में चार तरह के लोग होते हैं। एक जो दिल से दो तरह के लोग होते हैं, सॉरी, एक जो दिल से चलते हैं और एक जो दिमाग से चलते हैं। दिल से चलने वालों को हमने नाम दिया है पैसिव और दिमाग से चलने वाले लोगों को नाम दिया एग्रेसिव। जो दिल से चलते हैं बड़े भोले, इमोशनल होते हैं, इंपल्सिव, इरेशनल, इलॉजिकल हो जाते हैं। तो इंपल्सिव लोगों में भी दो कैटेगरी है, पैसिव गुड और पैसिव बैड। आप मंदिर गए, तीर्थ गए, हरिद्वार गए, हाथ में 10-10 रुपए के नोट लिए और जो भी गरीब आया सबको 10-10 रुपए दे गए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कौन सी एक्टिविटी है ये? पैसिव गुड। You impulsively, irrationally, you're doing something good, which is a passive good category. Then comes the passive bad. Somebody brought a new car in the neighborhood और एक लड़के ने आके कार में स्क्रैच मार के चला गया। कौन सी एक्टिविटी है ये? Passive bad, impulsively, irrational, illogical, negative activity. So there are two types of passive people, passive good and passive bad. Then comes the aggressive people. As I told you, passive in the two category, passive good and passive bad. And aggressive had two category, aggressive bad and aggressive good. ये चार लोग तरह के। अब aggressive लोग कौन से होते हैं? Those who manipulate, scheme, analyze, investigate, research करते हैं। Passive लोग impulsive, irrational, illogical होते हैं, उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। एग्रेसिव लोग प्लान स्कीम। तो एग्रेसिव बैड वो लोग हैं जो प्लान स्कीम, मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज करके, मैनिपुलेट करके, स्कीम करके पैसिव लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं। ये लोग पैसिव लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं। नाउ इफ यू सी महाभारत, युधिष्ठिर वाज अ पिक्चर ऑफ पैसिव गुडनेस. All the Pandavas, by the way, it was a picture of passive. They were very nice, goody people. Very nice, very humble, very caring, very nice people, goody people, but emotional थे, impulsive थे, irrational थे. छोटी छोटी बात पे इमोशंस हो जाते थे। तभी तो उसके इमोशंस को हिट किया दुर्योधन ने, जुआ खेल लिया। इमोशनल लोग। Then comes the aggressive bad. दुर्योधन और शकुनी प्लान, स्कीम, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट करके एग्रेसिव बैड थे। और समाज में एग्रेसिव बैड लोग इमोशनल पैसिव गुड लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं। Why good people suffer in this world? Why good people suffer in this world? Because most of the good people are very emotional, passive होते हैं। और आपके घर पे भी होता है, बच्चा अकेले गिर जाए, साइड में गिर जाए, छोटा सा बच्चा अपने आप उठ के चल जाता है, लेकिन 10 आदमियों के बीच में गिरे बड़ा शोर मचाता है। क्यों शोर मचाता है? क्योंकि उसे पता है अभी चॉकलेट मिलने वाली है, चॉकलेट मिलने वाली है। हमारे
परिवार में यदि आप पैसिव हो, इमोशनल हो, तो घर में कोई ना कोई एग्रेसिव बैड होता है जो हमें मैनिपुलेट करता है, ट्रीट अस, हमें कंट्रोल में रखता है। दैट एग्रेसिव बैड से हर कोई डरता है। भगवान जी कहते हैं पैसिव मत बनो, एग्रेसिव गुड बनो। तो भगवान कृष्ण जी इज अ सिंबल ऑफ एग्रेसिव गुड। व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस? जब दुर्योधन ने और कर्ण ने चोर छुपके से बैक में अभिमन्यु को मारा, क्योंकि जब लड़ाई, आई गिव यू लिटिल बैकग्राउंड, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो प्रोटोकॉल बना था, महाभारत की लड़ाई से प्रोटोकॉल बना था कि शाम को सूरज ढलने के बाद कोई किसी को नहीं मारेगा, एक आदमी पे कोई 2 आदमी नहीं मारेंगे, बैक से नहीं मारेंगे, निहत्थे पे नहीं मारेंगे, जब हथियार नहीं होंगे तो नहीं मारेंगे। प्रोटोकॉल बना था, और जो हथियार फेंक दे उसके साथ नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब अभिमन्यु को मारा तो सारे रूल तोड़े गए। अभिमन्यु को शाम ढलने के बाद मारा गया। अभिमन्यु को अकेला था, सबने मारा। अभिमन्यु के हथियार छूट गए थे, तब मारा। देर आफ्टर लॉट्स ऑफ पीपल क्रिटिसाइज भगवान जी कि उन्होंने भीष्म पितामह को छुरी से चुपके से क्यों मारा। उन्होंने सामने शिखंडी रख दिया और पीछे से अर्जुन ने मारा। आपको मालूम है भीष्म पितामह को कैसे मारा? शिखंडी आगे रख दिया, पीछे से अर्जुन ने तीर चलाया। धृतराष्ट्र को कैसे मारा? धृतराष्ट्र को मारा, कहा कि अश्वत्थामा मर गया, शोर मचा, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र ने सोचा मेरा बेटा जो अश्वत्थामा वो मर गया, तो उसने कहा एक ही आदमी की बात मानूंगा मैं, जो सच बोलता है। युधिष्ठिर बोलेगा तभी मैं मानूंगा कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर तो सत्यवादी था, वो झूठ बोल नहीं सकता था। और भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, युधिष्ठिर बोल दे, कहता नहीं बोलूंगा, मैं तो सच बोलूंगा। तो ठीक है, भगवान कृष्ण जी ने कह दिया चल ये बोल दियो अश्वत्थामा मर गया जो हाथी था। 2 मरे थे, एक अश्वत्थामा, एक हाथी मरा था। लेकिन शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया। तो ठीक है, युधिष्ठिर से पूछा द्रोणाचार्य ने क्या अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मर गया जो हाथी था। लेकिन जैसे ही उसने बोला जो हाथी था, कृष्ण जी ने पहले ढोल मृदंग बाजे बजा दिए, लाउड स्पीकर बजा दिए। जो हाथी था वो शब्द धृतराष्ट्र नहीं सुन पाया। आप कहीं क्रिटिसाइज करते हैं कृष्ण जी को कि कैसे कैसे किया। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। सो इफ यू आर वेरी इमोशनल, नाइस गुडी पर्सन, people will control you. It's not a microcosm, it's in a macrocosm also. And this has happened in a macrocosm also. चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था दुनिया को 1800s में, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। ब्रिटेन इंपोर्ट ज्यादा करता था, एक्सपोर्ट कम करता था। ब्रिटेन को लगा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ब्रिटेन ने इंडिया से ओपियम खरीदी, इंडिया में ओपियम बनाए और चाइनीज को फ्री देनी शुरू कर दी। जैसे भारतीयों को चाय दी उन्होंने फ्री और हमें एडिक्ट बना दिया चाय का, ऐसे चाइनीज को उन्होंने फ्री देनी शुरू कर दी ओपियम। धीरे 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 चाइनीज एडिक्टेड हो गए, उनके पास पैसे नहीं रहे। एंड इट्स नोन एज इन चाइनीज हिस्ट्री और ए वर्ल्ड हिस्ट्री ओपियम वॉर। चाइना के पास कोई पैसा नहीं रहा, तो उनको पास पैसा चुकाने के लिए चाइना को ने इंग्लैंड को अपना एक कंट्री का हिस्सा, एक पोर्ट 99 ईयर की लीज में दे दिया। उस पोर्ट का नाम क्या था? हांगकांग। 99 years की लीज में। So why I'm bringing this? If you are emotional in a microcosm or a macrocosm, aggressive लोग हमें हमेशा दबा के रखेंगे। So Gita doesn't preach emotionalism. गुडीनेस नहीं करती गीता। हाय मेरा बेचारा, हाय मेरा प्यारा, हाय मेरा दुलारा। हर माँ दुखी होती है जब बच्चे को इंजेक्शन लगाने जाते हो आप।
Your emotion don't allow you to say, रो रहा बच्चा, चीख रहा, चिल्ला रहा, उसको इंजेक्शन लगाना है. Can you become emotional that time? आप खुद रो रहे हो, लेकिन कहते हो बच्चा लगा 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 लगा. क्यों होते हो? क्योंकि आपकी बुद्धि कहती है दिस इज इंपॉर्टेंट. सो गीता जी बुद्धि के विकास की बात करती है, मन के विकास की बात नहीं करती. गीता इज अ वेरी हार्श एंड हार्ड सब्जेक्ट. ये लोरियां नहीं सुनाती. Doesn't gives you lullaby बेचारा, किस्मत का मारा. यदि आप दुखी हो, you deserve it. सीधा बोलती है. ये नहीं कहते हाय तेरी किस्मत खराब है, तेरी राहु में केतु दशा चल रही है, आजकल तेरा मंगल भारी चल रहा है, आजकल तुझे 7.5 चल रही है, हाय तेरे ये स्टार्स खराब है. नो, गीता स्ट्रेट वे सेज इफ यू आर सफरिंग यू डिजर्व इट, पीरियड. बिकॉज माइंड ने इंटेलेक्ट पे ओवर पावर किया. तो अलग अलग शंख बजाए. पृथ्वीपति अभिमन्यु ने शंख बजाया, और उस अभिमन्यु के शंख के बाद ही युद्ध की सारी घटना बदल गई. और वो घटना कहां तक बदली? पूरे 18 अध्याय तक चली. और उसके आगे क्या हुआ हम देखते हैं. श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19, चैप्टर नंबर 1. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारय नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुदानयन्. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारय नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुदानयन्. उस भयानक आवाज से धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिल को हिला दिया, और पृथ्वी आकाश उससे गूंज गए. द ट्यूमुलस साउंड रेंट हर्ट्स, और धृतराष्ट्र होस्ट इन द मेड अर्थ एंड स्काई रेवरेबरेट्स. तो कहते हैं भगवान संजय कहते हैं उस भयानक आवाज से धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों को हिला दिया, पृथ्वी और आकाश उससे गूंज गए. हम सबकी लाइफ में परिवर्तन हमेशा स्लो होता है, धीरे होता है. चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल. सो ये चेंज हो रही थी. 13 साल इसके लिए प्रिपेयर था. अब युद्ध की घड़ियां आ गई हैं. शंख बज के, ढोल बज के, मृदंग बज के, बाजे बज के. एवरीबॉडी इज रेडी फॉर अ फाइट. एंड दिस फाइट इज नॉट ए नॉर्मल फाइट. वर्ल्ड वॉर 1 के से पहले दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत की लड़ाई थी. इस दुनिया में 3 बड़ी लड़ाइयां मानी जाती है. द फर्स्ट, द ओरिजिनल बिगेस्ट वॉर जो हुई है वो महाभारत की हुई है. सेकंड जो हुई है वो वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 3 के बाद कुछ तीसरी चौथी लड़ाई होगी नहीं. वर्ल्ड वॉर 3 के बाद चौथी लड़ाई होगी नहीं. क्यों नहीं होगी? कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा. lots of theories हैं, lots of ideas हैं दुनिया में. बिब्लिकल आइडियाज हैं, क्रिश्चियनिटीज के आइडियाज हैं, हिब्रू आइडियाज हैं, ज्यूज आइडिया है, मुस्लिम्स आइडिया, हिंदू आइडिया ऑफ प्रलय है. प्रलय मीन्स कयामत, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं. कोई एस्ट्रोनॉमर्स की परिभाषा देता है, लेकिन वेदांता कहती है आप मरे जग प्रलय. आप मरे जग प्रलय. When you die, कयामत हो जाएगी. दुनिया में कोई भी चीज, कोई व्यक्ति किसी चीज को छोड़ नहीं सकता, कोई चीज खत्म नहीं कर सकता. किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि इसको खत्म कर दे. किसी भी, nothing in this world can be destroyed. You just change it. किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है इसको खत्म कर दे. ये क्या है? आप बोलोगे टिश्यू. क्या कलर है? इसका नाम टिश्यू है. ये एक टिश्यू है, इसका कलर व्हाइट है, मैंने फाड़ दिया. अब क्या किया मैंने? नाउ यू से 2 टिश्यूज. नाम बदल दिया, 1 का 2 हो गए. अब मैं, ये टिश्यू है,
इसको मैं बर्न कर दूं, जला दूं, आप इसको क्या देंगे? आप इसको कहेंगे राख बन गया, ऐश बन गई। नाम क्या हो जाए इसका? राख हो गया। रूप कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, या सफेद भूरा हो जाएगा। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। ये फिजिक्स का लॉ है। एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयबल। यू चेंज द एनर्जी। सो ये घबराना छोड़ दो। हाय दुनिया में कयामत आ जाएगी, प्रलय हो जाएगी। There are lots of spiritual hawkers जो डरा रहे हैं. I'm sorry to give like ब्रह्मा कुमारी, Christianity, they all create कि दुनिया में कयामत आने, थोड़े दिनों बाद दुनिया खत्म होने वाली है। फियर मुंगूस लेके बैठे हुए ये। I was a part of the concept known as Pentecostal Christians in Geneva. I must tell you this, how I came to spirituality. I was in Switzerland. In 1985, I'm talking about. In 1985, I went for study there to Switzerland and job and career banane gaya tha. And there I got involved with the Christian missionary in Geneva in 1985. I was just 20 years old. And they were saying, Dunya khatam ho. Within 6 months, you must see the world is going to destroy. Khatam ho jayega. Dunya pralay ho jayegi. दुनिया खत्म हो जाएगी। फियर, कयामत का, डर का। Hinduism doesn't talk about it. Hindu says nothing in this world can destroy. You just change. Death भी हो जाएगी. Death is nothing but a change of, listen me carefully, death is nothing but a change of dress and address. Death is nothing but a change of dress and address. ये डेथ को हिंदी में बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? मृत्यु। डेथ का एक नाम है देहांत। देहांत, देहांत का मीन्स देह का अंत। जो अंदर अंतःकरण है, जो अंदर मन बुद्धि है, उसका कोई अंत नहीं हो सकता। That's what the whole Gita philosophy is. Nothing in this world can be destroyed. अर्जुन, तू ना कभी मरेगा, you will never die. कोई भी नहीं मरता इस दुनिया में, कोई भी नहीं मरता। सब एक चोला ओढ़ के छोड़ के दूसरा चोला ले लेते। सो ये जो डर बिठाया हुआ है ना, हाय दुनिया में प्रलय हो जाएगी, कयामत हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। Now Vedanta doesn't follow that theory. No one can destroy anything. You just change a नाम और रूप, न्यू फॉर्म, न्यू रूप आ जाएंगे। और ये नाम रूप रोज हो रहे हैं। जब छोटी थी तो आपका नाम था गुड़िया। जब छोटी थी तो आपको कोई पोती कहता था। पोती का नाम आपको कब दिया? नाती का नाम कब दिया? जब दादा दादी नाना नानी थे। जब दादा दादी नाना नानी गए तो पोती भी गई। आप पोती कब तक थी? जब तक दादा दादी थी। आपको अभी कोई दादी नहीं कहता, आपको अभी दादी नाम नहीं मिला, लेकिन मे बी कुछ सालों बाद when your son or daughter gets married, पोती नाता नाती दादी बन जाओगे तो आपको नया नाम मिल जाएगा, दादी का या नानी का। अभी आपको कुछ सालों पहले कहते हैं गुड़िया, कहते थे गुड़िया, और कुछ सालों बाद क्या बोलेंगे? बुढ़िया। मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो। अभी बोल रहे हैं गुड़िया, बाद में गई है, आजकल गई है सत्संग में बैठी होंगी हमारी। कौन चेंज हुआ? नाम और रूप बदला। पहले नाम था गुड़िया, फिर नाम बन गया बुढ़िया। पहले नाम था बेबी, फिर नाम पड़ गया बेबे। बेबे भी बुलाते हैं ग्रैंड मदर को। सो प्लीज ये डर हटा दीजिए लाइफ में। हाय कुछ, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरी लाइफ का क्या होगा, हाय मेरी जिंदगी का क्या होगा। ये डर हटा दीजिए। और जब डर आदमी के जीवन में आ जाता है तो आदमी कभी भी सीख नहीं सकता। डर में आदमी कभी नहीं सीख सकता। डर में आदमी एक चाय नहीं बना सकता। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत है। तो गीता निर्भय बनाती है, अभय बनाती है।
लेकिन हम है कि इमोशंस में फंसे रहना चाहते हैं, दुखों को छोड़ना ही नहीं चाहते, और इस उम्मीद से दुखों में फंसे रहते हैं शायद सुख आ जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है भागवतम में। भागवतम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है एक शिकारी की। एक शिकारी शेर का शिकार कर रहा था। इमेजिनेशन देखिए पोएट की। द स्टोरी इटसेल्फ इज ए इमेजिनेटिव है बहुत ज्यादा। तो एक शिकारी शेर का शिकार कर रहा था और उसके हाथ से धनुष बाण गिरा, शेर पीछे भागा, शिकारी आगे, शिकारी आगे, शेर पीछे, और शिकारी से जल्दी जल्दी भागते भागते टू सेव हिज स्किन वो एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ के नीचे शेर, शिकारी पेड़ के ऊपर, और गलती से शिकारी उस पेड़ की उस टहनी पे बैठ गया जो बहुत नाजुक थी। एनी टाइम दैट कैन ब्रेक। नीचे शेर, शिकारी पेड़ पे, और उस नाजुक टहनी पे शिकारी, और उस नाजुक टहनी के नीचे तालाब। नीचे शेर, नाजुक टहनी, नाजुक टहनी के नीचे तालाब, और तालाब में मगरमच्छ। शेर, नाजुक टहनी, तालाब, तालाब में मगरमच्छ, और उस नाजुक टहनी के ऊपर वाली टहनी में मधुमक्खी का छत्ता। शेर नीचे, पेड़, पेड़ की नाजुक टहनी, टहनी के नीचे तालाब, तालाब में मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, एंड उस क्रोकोडाइल तालाब के ऊपर टहनी, टहनी के ऊपर वाली टहनी में मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव्स। हवा बही, टहनी हिली, और जब टहनी हिली तो उस शिकारी का सर जाके उस मधुमक्खी के छत्ते पे लगा। शेर, पेड़, शेर, नाजुक टहनी, तालाब, तालाब में मगरमच्छ, ऊपर मधु बीहाई, और उस आदमी, उस शिकारी का सर जाके उस बीहाई में लगा, और हजारों मधुमक्खियों ने उसको डंक मारा। ऐसे में एक कत्थई रंग की शहद की बूंद उस छत्ते से आके उस शिकारी के नाक पे गिरी। एंड द स्टोरी गोज, वो शिकारी अपनी जबान में आगे लगा के उसको टेस्ट करने के चक्करों में लग गया। न जोक से पाठ, यहां प्रॉब्लम, यहां टेंशन, यहां इश्यू, यहां प्रॉब्लम, एंड वी एक्सपेक्ट बस इफ ओनली आई गेट दिस आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस। This is the story of the human. Yeah, problem. I'm not a pessimistic person. I'm not a pessimistic person. I'm a philosopher. There's a difference between a philosopher and a pessimistic person. Pessimistic sees the negativity in all opportunities. Pessimistic sees the negativity in all opportunity. A philosopher sees the opportunities in all negativities. सो इस स्लंबर से उठिए, इस मोह से उठिए, बुद्धि को डेवलप कीजिए, और गीता बुद्धि डेवलप करने को कहती है। एंड व्हेन द इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड वी आर एबल टू हैंडल आवर लाइफ। एंड इंटेलेक्ट डेवलप करने के लिए यू नीड टू स्टडी योर माइंड, यू नीड टू स्टडी योर इमोशन, यू नीड टू स्टडी द स्क्रिप्चर। एंड हियर वी हैव अ स्क्रिप्चर, श्रीमद् भगवद गीता। वी स्टडी स्क्रिप्चर भगवद गीता, टाइम टेस्टेड स्क्रिप्चर है। एक श्लोक और करते हैं, देन विल हैव टू क्वेश्चन आंसर्स। वर्स नंबर 20, लास्ट वर्स करते हैं, एंड देन विल हैव इफ एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन, बी प्रिपेयर फॉर अ क्वेश्चन प्लीज। 20th वर्स, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। I repeat, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। संजय कह रहा है, हे महीपते, तब कपिध्वज वाले पांडव ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को खड़े देखकर शास्त्र चलाने के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश जी को ये वचन कहे। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है गीता जी को समझने के लिए। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एंड विद दिस वर्स टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। दिस 2-3 वर्सेस आर द की ऑफ द भगवत गीता। नाउ यहां कह रहे हैं, संजय कह रहा है कि अर्जुन ने अपना शस्त्र उठा लिया, धनुष उठा लिया है युद्ध के लिए। ही इज रेडी। अप टू दिस जंक्शन, अप टू दिस टाइम अर्जुन कंफ्यूज नहीं है कि लड़ूं या ना लड़ूं। वर्स नंबर 20, अप टू दिस जंक्शन अर्जुन को कोई डाउट्स नहीं है। उसने हाथ से गांडीव उठा लिया। ही इज रेडी फॉर अ फाइट। उसके अंदर कोई अब दो राय नहीं है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट में, विलियम शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, उसमें है टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन। अर्जुन के दिमाग में ये नहीं है करूं या ना करूं की दुविधा। अर्जुन इज रेडी फॉर फाइट। एंड 14 साल उसने युद्ध का इंतजार किया है, लड़ाई के लिए वेट किया है। गांडीव लेने इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र की संतान है अर्जुन। जैसे कि आप जानते हैं 5 देवताओं को लिया था कुंती ने। 5 देवताओं को, पहले सूर्य की आराधना करते, सूर्य की आराधना से कुंती को कर्ण संतान हुई थी। फिर इंद्र की, फिर धर्मराज की करी, उससे युधिष्ठिर हुआ। फिर इंद्र की तो फिर उससे अर्जुन हुआ। वायु की करी तो भीम हुआ। और अश्विनी कुमार की करी, ट्विंस की करी तो नकुल और सहदेव हुए। ये 5-6 संतानें थी। तो जो अर्जुन था वो संतान थी किसकी? इंद्र की। इसलिए इंद्र ने उसे गांडीव दिया था। इंद्र ने उसे युद्ध करने का लिए हथियार दिया था। ना अप टू दिस मूवमेंट अर्जुन इज नॉट कंफ्यूज्ड। अर्जुन इज नॉट कंफ्यूज्ड, ही इज रेडी फॉर अ फाइट। लेकिन अगले कुछ श्लोकों में कुछ ऐसे घटना घटेगी जहां अर्जुन इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। We make a decision, we take a decision, we stick to our decision for a long time, but at crucial times happen, हम perturb हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। Should I do it or should I not do it? There I know the kids, they are mad, they are getting married at the last moment. Sir, should I get married or not married? Then I always say, some kids comes and says, sir, should I get married or not? Should I not get married? I always say, by all means get married. By all means get married. If you get a good wife, you will become, your life will be good. If you get a bad wife, you will become a philosopher. It's Socrates' statement. It's not my statement, please. Socrates used to say this. Now, jokes apart, अर्जुन प्रिपेयर नहीं था, अब तक प्रिपेयर था, लेकिन अभी कुछ ऐसे घटना घट जाएगी जिसमें अर्जुन कोलैप्स हो जाएगा। एंड दिस इज, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सडन इवेंचुअलिटीज। सडन कोलैप्स के लिए हम प्रिपेयर नहीं। यदि दुख धीरे 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 आए तो हम प्रिपेयर हो जाते हैं। दुख धीरे 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 आए तो प्रिपेयर, जैसे सर्दी धीरे 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 इज नाउ लॉन्चिंग आवरसेल्फ। सर्दी धीरे 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 आ रही है, वी प्रिपेयर आवरसेल्फ। गर्मी भी धीरे धीरे आती है। सडनली मान लीजिए 40 से सडनली 4 पे टेम्परेचर आ जाए, कोलैप्स हो जाएगा कंट्री। तो चेंज इज ऑलवेज स्लो, ग्रेजुअल, लेकिन एकदम चेंज आ जाए तो वी आर नॉट एबल टू हैंडल। सो अब कुछ देर बाद अगले कुछ श्लोकों में जो नेक्स्ट हम टाइम पढ़ेंगे, तो आई विल टेक दोज वर्सेस। सो वहां पे हम एनालाइज करेंगे सडन चेंज को कैसे हैंडल किया जाए। एक नाम दिया यहां पे कपि ध्वज। हनुमान जी का ध्वज है ऊपर। ध्वज मीन्स फ्लैग है। हनुमान सिंबलाइज करते हैं कंट्रोल्ड माइंड। बंदर सिंबलाइज करता है माइंड, हनुमान जी सिंबलाइज करते हैं a controlled mind. And when you are able to control your mind,
you can achieve anything in life. ये शक्ति आती है हनुमान जी। सो आप और मेरी लाइफ में माइंड को जैसे ही डायरेक्शन जाए, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम, हमारा मन सूरज की रोशनी की तरह, सूरज की रोशनी चारों तरफ बहती है, उसको मैग्नीफाइड ग्लास से एक लक्ष्य दे दो, उसमें ऊर्जा आ जाती है। हमारा मन हवा की तरह, हवा चारों तरफ फैलती है, उसको एक डायरेक्शन दे दो तो ऊर्जा आ जाती है। सो यू गिव योरसेल्फ ए डायरेक्शन, अपने लाइफ को एक लक्ष्य बनाइए, डायरेक्शन दीजिए, यू विल बिकम हनुमान, एनर्जी आ जाएगी। एक बच्चा आधा घंटा पढ़ता है, उसको कहता है मैं मम्मा मैं बोर हो गया, थक गया। वही बच्चा 3 घंटे लगातार एग्जामिनेशन में लिखता है। कैसे आती है ऊर्जा? लक्ष्य आ गया। ऊर्जा कैसे आई? फ्रॉम वेयर डज ही गॉट सो मच पावर? गोल आ गया, लक्ष्य आ गया। सो माइंड इज लाइक ए सूरज की रोशनी है। हनुमान जी सिंबलाइज करते हैं कपित ध्वजा। हनुमान बंदर है, बंदर चंचल है, बंदर एक जगह बैठ नहीं सकता, लेकिन जैसे ही हायर कॉज मिला बंदर को, मन को जैसे ही हायर कॉज मिला, राम जी के साथ जुड़ गया, इन्फिनिट पावर आ गई। एंड दैट्स व्हाट वी हैव, दैट्स व्हाट यू आर। You guys have infinite power. You guys have an incredible power. You have an incredible energy, but we don't utilize our incredible energy. We waste our energy because of on an unproductive channel. So pick up a higher goal. Kapi Dhwaja, higher goal. You will have a more energy. With this, we conclude a class, and then we are open for a question answer. Om. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Any question? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। यहाँ तो सब समझ गए। Whatever I said, everybody understood. So please ask. गुरुजी मेरे को पूछना था, Please. कई बारी आप अगर बुरा नहीं करो, पर समटाइम्स यू सी समथिंग बैड हैपनिंग, कहीं पे तुम्हें दिखता है कि कोई किसी को गुस्सा कर रहा है तो तुम्हें बुरा लगता है, यू नो, और या कहीं पे किसी को किसी चीज का कष्ट हो रहा है, बट यू समटाइम्स आर हेल्पलेस। तो उस सिचुएशन में कैसे इमोशंस होने चाहिए? अपने इमोशंस को कंट्रोल करे एज अ नॉन डूअर करके one should just move on, या you know, how do you handle that, because you feel bad for the other person who's getting probably scolded? बोस्निया में होम गृह युद्ध हो रहा है, बोस्निया में। हाँ जी। Are you disturbed? No. I mean, I haven't watched the news, but maybe if I do, I will get disturbed. Yeah. People are killed in Azerbaijan or Baku. Have you heard about it? Are you disturbed? I'm not disturbed, but of course I feel bad what's happening in the world. Can you do anything to save the problems of Azerbaijan or Baku? That's what I'm saying, कि वो हम helpless है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? Is it your obligatory duty? हाँ जी। Is it your obligatory duty to solve the problem of Bosnia? No. So why we are disturbed? In this world, there's the most important duty that you have. It sounds very selfish. The most important duty that you have is to keep yourself cheerful and happy. Then your obligatory duty is to 7 or 8 people, which is very close to you. It's not that you are careless or reckless toward other people. In the case of emergency, air mask ऊपर से आते हैं. What is the first thing that you are supposed to do in a flight? Wear it yourself. घर में 5 जने हैं, 4 को कंजक्टिवाइटिस हो गया, आपको नहीं हुआ. What is the most important duty you have? To protect yourself. तो सबसे important क्या है?
हाँ जी, to protect myself. If it's your obligatory duty, suppose somebody is treating bad to your staff, or somebody is treating bad to somebody where you have an obligatory duty, please help him or her if you think it's your obligatory duty. Now somebody have an obligatory duty higher, like Narendra Modi ji ki obligatory duty is very vast. It's a very vast obligatory duty. हर किसी की individual obligatory duties होती हैं. So if you think it's your obligatory duty, पूरा chapter 3 इसी topic पे आएगा. I'm not going through a detail. There are 4 ways to find out is it your obligatory duty or not. If it is your obligatory duty, do it with the total commitment, and whatever is the consequences, accept it with the grace. Whatever. So in family, in a society, if you find somebody is very nasty to the staff, you may have a family member in a house who's very nasty, very shouting to the staff. Anji. So if you can handle him or her intelligently, please do it. Because if it's your obligatory duty, you should help him or her. But don't do it out of emotion, out of buddhi. उसके तरीके क्या हो सकते हैं? You have to be very technically practical. But जैसे गुस्सा हो और आप इमोशनल हो के उसके सामने लड़ने चले जाओगे, you will have a double problem. So in a situation, in a crisis, you have to think objectively and imagine यही इस सिचुएशन आपकी सहेली के पास हो, तो जो आप अपनी सहेली को सलाह दोगे वही अपने दो. If it's your obligatory duty. If it's not your obligatory duty, you cannot put all your neck in everybody's problem. You can't put everybody. I totally understand that now. Thank you. Anybody else? Okay, we conclude to this class. Thank you very much. Hari Om. It's 6 o'clock now. Hari Om. Om. Om Pur. अच्छा पूर्ण तो कर लिया हमने. Thank you very much.